Good morning, Standard 3, and welcome back to today's mathematics class. Okay, today we are going to start a new chapter, that is time measurement. But before that, I would like to say I hope all of you have done your PT3 very well, and as I can hope it from you. Okay, so today I am going to start a new chapter, that is time measurement. Time measurement. Why should we need the time measurement? We need to measure the time to see whether our daily activity we are doing in the correct time or correctly or not. Okay, so that is why we need to do the measurement of time. But in the olden days, how the people are measuring time? People are measuring time by or with the by seeing the movement of the sun. Okay, so in this class we will study how to measure the time, right? And nowadays we have many more things. We have digital clocks, electronic clocks, wall clocks. Okay, so to start the chapter we will have a clock, and now see the face of the clock, and this is the wall clock that you have in your home also, right? So ये एक वॉल क्लॉक है जो ऐसे तरह का क्लॉक आपके घर में भी है. तो इस क्लॉक में आप देख सकते हैं there are two hands, okay, or two hands, or we can say the two hands are fixed on the dial of the watch, okay, or of the clock, right? The longer one, there are one is longer hand, and another is shorter hand, okay. So the longer hand is called a minute hand. This is a minute hand, okay, longer one. And the shorter one is called hour hand. Okay. Now I will tell you what is the difference between minute hand and second hand. Okay. There are, you must have seen, if you will count, there are 60 small divisions. Okay. 60 small divisions like this around the wall you can see, or wall clock you can see. Okay. So these are each point, 60 points are there total, 60 points. Okay, and these 60 points are called the what? They make a 60 minute. Okay. One revolution of the this is a minute hand and this one is a hour hand. Okay. When it is at 12 and the hour hand is at 3, pointing at 3, okay, so we say this is 3 o'clock. We can write like this, 3 o'clock, or we can write 3 colon 00. Okay. When the hour hand come to this point 4, okay, and the minute hand is at 12, then we say 4 o'clock. Okay. When the hour hand move towards or point at the 5, then we say, and this will be at the where? 12, then we say that is 5 o'clock. Okay. Similarly, when the small hand or the shorter one is at 6 and the minute hand, longer hand or longer one is at 12, then we say that is 6 o'clock. Okay, like this. Then after 1 hour it will be at 7, so we say 7 o'clock. Again after 1 hour it will be at 8, then we say 8 o'clock. After 1 hour similarly 9, then 9 o'clock, then 10 o'clock, 11 o'clock, and for the 12 both hand will be like this on the 12. Okay.
the shorter hand as well as the longer one, both will point at 12. So we say that is 12 o'clock. Okay, that means that the longer hand shows the minute and the shorter one shows the hour. Okay, but how they complete the revolution or the rotation, okay, we will see. In every minute, okay, this minute hand will cover each point like this, each point of division, and there are 60 divisions I told you around the clock. Okay, whether it is a wristwatch or a wall clock, and nowadays the design of several designs of clocks are coming into the market, right? So you can have any of the clock, but there will be the 60 divisions on the right way around the clock. Okay, each point shows the minute, because this minute hand will move in every minute or the every revolution of a second hand. Another hand is there. Okay, it used to move randomly. Okay, another hand is there that used to move randomly, that we say that is a second hand. You must have seen like this. Okay, and this used to rotate in each second. Okay, so in each second, first second this to this point, then next second to this point, next second to this point, next second to this point, next second to this point. Similarly, when it run around one revolution, जब ये सेकंड हैंड जो है एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा, तो ये मिनट हैंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शिफ्ट हो जाता है, राइट? वो हमें नहीं दिखता है पर वो शिफ्ट हो जाता है, राइट? सो हम लोग क्या बोलते हैं, और ये जैसे ही ये मिनट हैंड जैसे इस तरह से शिफ्ट कर करके जब पूरे रिवोल्यूशन को आ जाता है, एक बार जहां से शुरू हुआ है वहां से आ जाता है, तब आप देखेंगे ये जो आवर हैंड है, दिस आवर हैंड, ओके, इट विल कवर फ्रॉम वन नंबर टू द अनदर नंबर. ओके, एंड यू कैन सी क्लॉक में हमारे न्यूमरल्स भी है 1 2 3 4 अप टू 12 तक लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है. ओके, सो हम लोग ये काउंट करेंगे कि देखिए अगर ये 1 मिनट में यहां से यहां तक आता है, तो ये आवर हैंड 1 आवर में 12 से 1 तक आएगा. ओके, एंड 12 से 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 से again 12. ओके, so this point, this after ये जो 12 पॉइंट्स हो गया, इनमें से मैंने कहा कि 60 डिविजन्स होता है और 60 स्मॉल पॉइंट्स होता है जो एक छोटा छोटा मार्क से इस तरह से दिखा देता है. तो आपको यहाँ पर काउंट करना चाहिए कि हर एक नंबर के बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है, क्योंकि 5-5 मिनट का डिविजन होता है, लाइक दिस डिविजन. ओके, 5-5 मिनट का होता है. तो ये बनता है कि हम लोग मिनट को कैसे काउंट करेंगे. ठीक है, सो 12 से 1 जाएगा तो कितना कवर करेगा, 1 2 3 4 5. सो यहाँ से हो गया 5 मिनट. सिमिलरली 1 से फिर 2 जाएगा 5 और इधर से 5, तो कितना हो गया 1. टोटल कितना कवर किया उसने ना, टोटल 10 डिवीजन कवर किया उसने. ठीक है, सो हर एक बीच में गैप में 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके होता है. तो हम लोग कैसे करेंगे काउंट, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है. जब मिनट हैंड 1 में होता है तब कितना होता है, तो 5 into 1 that is 5 minutes, राइट? जब मिनट हैंड 2 में होता है तो 5 into 2 हो जाता है 10 मिनट्स. इस तरह से हम मिनट्स को काउंट करते हैं, राइट? जब 3 में होता है 5 into 3 15 मिनट. जब 4 में होता है 5 into 4 20 मिनट, राइट? जब 5 में होता है तो 5 into 5 25 मिनट. ओके, 6 में आया तो 5 into 6 हो गया 30 मिनट, राइट? 7 में आया तो 5 into 7 हो गया 35 मिनट. ओके, नेक्स्ट
यस 8 में आया तो 5 इंटू 8 हो गया 40 मिनट, राइट। 5 में 9 में आया तो 5 इंटू 9 हो गया 45 मिनट। सिमिलरली 10 में आया तो 5 इंटू 10 हो गया, 5 इंटू 10 हो गया कितना 50 मिनट। 5 इंटू 11 में आया तो वो हो गया 5 इंटू 11 55 मिनट। 12 में जाके पहुंचा तो 5 इंटू 12 ये 60 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यही 60 मिनट से आपका बिगिनिंग हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। तो वहाँ हम 0 काउंट करते हैं मिनट को, ओके। यहाँ हम 0 काउंट करते हैं मिनट को, इसीलिए हमारा मिनट हैंड की शुरुआत 12 से होती है। और अगर आवर हैंड कहीं पर भी पहुंचा और ये मिनट हैंड 12 पर ही रहता है तो हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि दैट इज द गिवन ओ क्लॉक, जितना समय हुआ है, राइट। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, दिस इज 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट एंड 65 मिनट, और दिस इज द बिगिनिंग। सो दिस इज 0 टोटल रिवोल्यूशन 1 मिनट मतलब कि 60 मिनट में हो जाता है। जब 60 मिनट होता है तो वो हो जाता है आपका 1 आवर, ओके स्टूडेंट। कि 60 मिनट्स में एक रिवोल्यूशन मिनट हैंड का कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। मतलब कि अगर वो पहले 3 हुआ था और 12 हुआ था तो अब ये 1 o'clock हो जाएगा, ठीक है। 1 o'clock ये आवर हैंड एक नंबर में शिफ्ट हो जाएगा जो आपका 1 o'clock हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि सर यहाँ पर है जो 60 मिनट हो गया आपका, 5 इंटू 12 में 60 मिनट हो गया, ठीक है। सो 5 इंटू 12 में 60 मिनट हो तो गया, फिर 5 इंटू 6 में 30 मिनट हुआ था, तो ये 60 मिनट का आधा है, राइट। अगर हम लोग का ये आवर है, मान लीजिए यहां पर है, आवर हैंड इज हियर, ओके, पॉइंटिंग बिटवीन द 3 एंड 4 एंड अभी तक ये 4 को टच नहीं किया, लेकिन मिनट हैंड एग्जैक्टली 6 पर होता है। तो कितना आता है ये 4 तक तो पहुंचा नहीं, तो हम लोग बोलेंगे 3:30, ओके 3:30। तो 30 क्या होता है, 30 60 मिनट का आधा होता है 30। तो हम लोग बोलेंगे 3:30 को ये भी कह सकते हैं सर दिस इज 6:30, 6:30 मतलब कि ये 6 का आधा, सॉरी 3:30, ओके। ये 3 का आधा हो चुका है तो 3:30 यही कहेंगे, ठीक है। 3:30 बजे को हम बोल सकते हैं 3:30, 4:30 को बोल सकते हैं 4:30, 5:30 को बोल सकते हैं 5:30, 6:30 को बोल सकते हैं 6:30, लेकिन मिनट हैंड आपका 6 में होना चाहिए, ओके। एंड दीज आर द रेस्पेक्टेड मिनट्स, कहाँ कहाँ कितना काउंट करना है ये हमने मल्टीप्लाई करके भी बता दिया बहुत अच्छी तरह से। और अगर ये 30 मिनट्स को हम फिर से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 15 होता है, 15 मिनट होता है। तो 15 मिनट 60 के साथ क्या रिलेशन है ना, 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 मिनट। अगर ये वाला क्लॉक को हम 4 इक्वल हिस्से में बांट देते हैं, ओके, ये हो गया आपका सिमेट्री। तो स्क्वायर भी क्या है, इससे पहले आप फ्रैक्शन भी कर चुके हैं। तो ये 4 हिस्सा जो हो गया 12 से लेके 3, 3 से लेके 6, 6 से लेके 9, 9 से लेके 12 लगे, ओके। तो इसको हम बोलेंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। मतलब कि यहां पर हो गया हम लोग का, अगर मिनट हैंड 3 में रहता है तो हम बोलेंगे क्वार्टर, एक क्वार्टर हो गया तो क्वार्टर टू 3 मान लीजिए, और ये 4 में है तो क्वार्टर टू 4, मतलब कि 4:15 जो भी होता है कि 4:15 अगर हो गया कि 4:15, ओके। तो 15 मिनट्स मतलब क्या,
This is the quarter of 60. 15 4 is 60. So 60 by 4 equal to 15. That means what? 1 by 4 of 60 is equal to 15. We can say 1 by 4 in of 60 is equal to what? 15. So 15 means we say that is a quarter. Okay. So quarter, मान लीजिए आपका हो गया 415, तो we can say quarter of 4. ओके, ये हो सकता है 415 को हम लिख सकते हैं इंग्लिश में इस तरह से। और अगर 15 मिनट और आप बोलेंगे 50 मिनट पास, जिसको हम बोल सकते हैं 15 मिनट पास्ट 4, ये भी हो सकता है। 4:15 हो चुका है और जब यहाँ पर पहुंचता है तो ये तो हाफ हो जाता है। हम लोग 30 मिनट को हाफ बोलेंगे, हाफ पास्ट कुछ भी आवर हो, ठीक है। और अगर यहाँ 90 में पहुंचा है, तो 9 में अगर पहुंचा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 9 में पहुंचा हो मिनट हैंड, तो वो हो जाता है आपका 45 मिनट, राइट। मान लीजिए आवर हैंड आपका 4 में है, तो ये हो गया 4:45, 4:45। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 45 मिनट पास्ट 4। ओके, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि 15 मिनट टू 4, मतलब कि 445 हुआ है। इसका मतलब बच्चा लिखा, आप लोग लिखते हो कि 55 मिनट पास्ट 4, 4:45 पार हो चुका है। कुछ बच्चा ने लिखा 50 मिनट टू 5, मतलब कि 5 बजने में और कितना मिनट बाकी है। मिनट हैंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहुंचने में और कितना मिनट बाकी रहेगा, 15 मिनट बिल्कुल, ठीक है। तो 15 मिनट टू 5, तो ये दोनों सही है, both are correct. Okay, but one thing is that I will say according to our division, okay, quarter, past, half past, we say कि 15 मिनट बाकी है, मतलब 1/4 बाकी है। ओके, एक हिस्सा, एक फ्रैक्शन बाकी है 1/4 मिनट हैंड का रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 12 में आने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे 5 बजे, 4 में था तो 5 भी आ जाएगा। जब तक ये पहुंच जाएगा मिनट हैंड में, तो ये भी 1 आवर हैंड से शिफ्ट होकर 5 में पहुंच जाएगा, राइट। बस, तो वी से कि क्वार्टर टू 5, मतलब कि 15 मिनट बाकी है 5 बजने के लिए, ठीक है। और 25 मिनट पास्ट, अगर 4:25 मिनट हुआ है तो बिल्कुल 25 मिनट नहीं रहेंगे, 4:25। तो हम लोग बोलेंगे 25 मिनट पास्ट 4। इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक रिलेशनशिप हमें जानना चाहिए कि ये आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ये है स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, दैट इज द रिलेशनशिप इज दैट आवर हैंड shows the hour, ये आवर दिखाता है। मिनट हैंड shows what? Minute, and second hand that move randomly shows what? Second, right? Similarly, so we say here that 60 डिविजन्स है हमारे पास। तो 60 डिविजन्स को हर एक मिनट लगता है मिनट हैंड को एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन मूव करने के लिए, राइट। हर एक मिनट लगता है। तो इस तरह से टोटल, अगर टोटल डिवीजन और मूवमेंट करता है तो कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लग जाता है। वेरी गुड, 60 मिनट लग जाता है, राइट। सो 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है ना, आवर हैंड एक नंबर से दूसरा नंबर शिफ्ट हो जाता है, तो 1 घंटा हो जाता है 1 आवर। सो दैट इज वी से 1 आवर means 1 hour is equal to 60 minutes or 60 minutes equal to what? 1 hour. Similarly,
second hand moves randomly. It moves in each second. That means total टिक 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 60 टाइम्स मूव करेगा तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है. दैट मीन्स एक रिवोल्यूशन अगर सेकंड हैंड कंप्लीट करता है तो मिनट हैंड का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट शिफ्ट हो जाता है. राइट. सो वी से 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. राइट. नेक्स्ट इज वी से what 1 day. 1 day इस तरह से कितना दिन होता है हम बोलते हैं 1 डे. डे मतलब क्या होता है ना, सुबह 6 से शाम 6 तक 12 घंटा, शाम 6 से फिर सुबह 6 तक 12 घंटा, तो कितना आवर होता है 24 आवर्स. राइट. सो वी से सर 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे. Okay, this is what you need to know in this chapter. Okay. Next, in this way you can say 40 minute past. 40 minute past हो गया तो 40 minute past, लेकिन 30 में हाफ पास्ट और 15 में क्वार्टर. अगर पास हुआ तो क्वार्टर पास्ट, और अगर 15 मिनट बाकी है तो क्वार्टर 2, और 5 मिनट्स बाकी है तो 5 मिनट्स 2, 10 मिनट्स 2, 20 मिनट्स 2, और 10 पास हो चुका है तो 10 मिनट पास्ट, 20 मिनट पास्ट, 25 मिनट पास्ट, 35 मिनट पास्ट, 45 मिनट पास्ट, etc. Okay, dear students, in this exercise, this is exercise number 57. Okay, exercise number 57. इस एक्सरसाइज में आपको पूछा जाएगा खाली या तो आप हैंड बैठाएंगे या फिर आप टाइम डिनोट करेंगे. ओके. हैंड दिया होगा, हैंड में सोइंग होगा, क्लॉक में सोइंग होगा, आप टाइम लिखेंगे, या फिर टाइम लिखा होगा इतना टाइम के लिए आपको मिनट हैंड एंड आवर हैंड शो करना है. ठीक है. एंड इन द डिजिटल क्लॉक यू मस्ट हैव सीन डिजिटल क्लॉक में ओनली उसमें कोई दिस इज द एनालॉग क्लॉक. ओके. ये सब एनालॉग क्लॉक होता है. डिजिटल क्लॉक में सिंपली ऐसा आता है कि 7:45 मिनट. So in digital clock it shows like this only, hour and minute, no second. Okay. But nowadays more developed watches, wrist watches are coming. There it shows the seconds. Okay. In a side, second 1, 2, 3 up to 60, 59, then 60 here. 1 will be added to the minute. Right. So only the numbers in case of digital clock. और एनालॉग में इस तरह वॉल क्लॉक में हुआ, रिस्ट वॉच में हुआ, जहाँ पर ये हैंड्स होता है और डायल फिक्स होता है, जहाँ पर डायल रहता है इस तरह से. ओके. दे आर कॉल्ड एनालॉग, और दिस होता है एनालॉग एवरीथिंग. ओके. सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 57, एंड नेक्स्ट क्लास टुमारो आई विल बी कमिंग विथ AM and PM and the converting of times from hour to minute, minute to second, and day to whatever. Okay, etc. Thank you. Have a good day. God bless you all. Do the exercise, don't forget. Okay.